कॉर्टेक्स डायरेक्टली, तो फिर उससे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है ब्रेन के पैरेन्काइमा को। तो अल्लाह ताला ने बहुत टेक्निकली इसको बनाया है, और इन दिस वे इज a thin inner layer of meninges that only covers the spinal cord and the cerebral cortex. It does not have any fibrous tissue in it, ठीक है, and but it is very rich in blood supply which provide nutrients to the nervous tissue. सबको समझ आ रहा है? Everybody can hear me? Any issues up till now? You guys can write in the chat if you want. Okay. So next slide is epidemiology. Thoda bahut, for every disease you need a little bit information about the epidemiology of the disease. The incidence of meningitis is 2 to 6 per 10,000 adults per year in the developed countries, and it is up 10 times higher in the less developed countries. Like the less developed countries are the Bangladesh, it is Pakistan, India, Somalia. All these are the less developed countries, but the developed countries is UK, USA, in which the incidence is only 2 to 6 per 10,000 individuals. In the United States, the annual incidence of bacterial meningitis is approximately 1.38 cases per 100,000 population, with a case fatality of about 14.3%. The highest incidence of meningitis worldwide is in the area of the Saharan African, and which is known as the meningitis belt, stretching from Ethiopia to Senegal. ठीक है, तो basically what you can see in this picture is a green colored belt which is known as the meningitis belt, in which all the countries that are lying in this belt, they are those countries in which meningitis is very common. The prevalence of meningitis is greatly decreased over the last 15 years due to the development of vaccines. ठीक है, जो भी हिस्ट्री अपनी पढ़ते हैं या जिस तरह से हम मेडिसिन में आगे बढ़ते हैं, तो वी कैन सी दैट द मेनिंजाइटिस वाज वेरी लीथल इन द अर्लियर एरास, बट राइट नाउ हमारे पास एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन इतनी अच्छी आ गई हैं कि वी आर नॉट anymore dealing with complications of meningitis. Very less complications are being seen, और meningitis अगर होता भी है तो उसकी severity बहुत कम है, उसका fatality ratio काफी कम हो चुका है. So the next slide is the risk factors. Now, who are the individuals who are at the risk of getting meningitis? Is number one, the chronic medical disorders like renal failure, diabetes mellitus, adrenal insufficiency, cystic fibrosis, or those individuals who are at the extreme of ages, like those individuals who are like infants हैं या फिर neonates हैं, वो extremes, या फिर the older age group, or those individuals who do not have any vaccination history, immunosuppressed states like transplant age patients हैं, congenital immunodeficiencies हैं किसी के अंदर, iatrogenic है या फिर किसी को AIDS like condition है, those individuals who are living in very crowded conditions, slum areas हैं, छोटे rooms हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा connected हैं rooms, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा contagious हो जाता है disease. Exposures like travels to endemic areas, we have already discovered we have already discussed कि endemic areas वो ही belt है meningitis का belt, like अफ्रीका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है, और साउदर्न वेस्टर्न यूएस है फॉर कोकाई, एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज है यूएस के फॉर लाइम्स डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट इज द वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज हैं या टिक्स हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा रेगुलर अल्कोहल का यूज करता है वो, प्रेजेंस ऑफ वीपी शंट्स हैं, लाइक आपके अगर ब्रेन में कोई वीपी शंट डला है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल या कोई फॉरेन बॉडी इंसर्टेड है, तो इट इज़ वेरी वेरी कॉमन के वो एरियाज के अंदर या वो जो भी शंट्स होते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनाइज होता है. ठीक है, अदर देन दैट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट्स में मेलिग्नेंसीज जिनमें है, ड्यूरल डिफेक्ट्स हैं, मतलब किसी को ट्रॉमा है तो ड्यूरा मैटर उसका टेयर हो गया है, या वो आईवी ड्रग अब्यूज है उसके अंदर, या फिर कुछ लोगों को जिनको सिकल सेल एनीमिया है, साइनसाइटिस है, मेस्टोडाइटिस है या ओटाइटिस है. So all these patients are at the risk of having meningitis. Okay.
So the next slide is basically the routes of entry into the CSF. Now, how we can see, how we can know that when we know that Allah Ta'ala or nature has protected our brain into three layerings. So, what are the routes of entry that the bacteria can gain entrance into the CSF? Now, the first one is an infectious agents like a bacteria, fungus, vira, or a parasite that can gain access to the CNS and cause meningeal disease via the invasion to the bloodstream. Matlab, the infection is in the blood and or the patient is going through fungemia or viremia or pyricyemia, and it has subsequent hematogenous seeding into the CNS. The second one is the retrograde neuronal, like the nerves themselves, like olfactory nerve or the peripheral nerves. And the peripheral nerves, we all know that the olfactory bulbs and the olfactory nerves are the single-ended nerves ना. तो यहाँ से जैसे नेगेरिया आजकल बहुत ज़्यादा common हो गया है, so it can gain entrance through the nerve pathway to the cribriform plate and it goes directly into the brain. The third one is the direct contagious spread, like the otitis media, sinusitis, congenital malformations, trauma, any kind of middle ear infection होते हैं, किसी को nose का infection होता है, sinus के अंदर bacteria अगर colonize हो गया, so all these things can travel through into via the dura mater into the CSF and cause meningitis. ठीक है? और congenital malformations के अंदर कोई ऐसी malformations जिसके अंदर access हो के आपके brain के parenchyma में invasion of the bloodstream and subsequent seeding into the is the most common mode of spread to for most of the agents. Now the most common route क्या है? What is the most common route is the bloodstream, that is the seeding of the bacteria or the virus or the fungus or the parasitemia into the CNS. This pathway is characteristic for meningococcal, cryptococcal, syphilitic, and pneumococcal meningitis. All these are types of meningitis. We will be discussing further that what is meningococcal, what is pneumococcal, what is cryptococcal, and what is syphilitic meningitis. Okay. Now, after just discussing about the routes of entrance, we need to know that what is the pathophysiology, how it is caused. Okay, so we can see the first box that shows that there is a causative organism entering to the bloodstream. Then the arrow goes and it crosses the blood-brain barrier. There is a blood-brain barrier in the CNS which has to be crossed in order to cause the infection. When the pathogen crosses the blood-brain barrier, there is an inflammatory reaction in the meninges. Whenever there is a foreign body, whenever there is a foreign object, or whenever there is a organism crossing through the blood-brain barrier, there is an alarming signal of the body and it causes an inflammation in order for the body to know that there is something not acceptable to the brain. Okay, whenever there is an inflammatory reaction in the meninges, now what happens that the inflammation seeps into the through the dura mater into the subarachnoid space and the pia mater, and we all know that the pia mater and the arachnoid mater were the inner layerings of the meninges. Okay? Now what happens, the inflammation or the what is an inflammation? Inflammation is basically swelling, and this swelling may cause an increase in the ICP, that is the intracranial pressure. Brain का जो pressure है वो बढ़ जाएगा and the CSF gets infected. और उसमें आपको क्या नजर आएगा, CSF का cell count increase हो जाएगा. CSF is basically the fluid that surrounds the brain and the spinal cord. उसके अंदर जब infection increase हो जाएगा तो आपका cell count increase हो जाएगा. Likewise when there is a blood infection तो आपका WBC count increase हो जाता है. इसी तरह जब CSF में infection होता है तो आपका उसका WBC count बढ़ जाता है. ठीक है, तो these are the measures by which we can see that there is an infection in the CNS. Any questions up till now? Any questions you can type in the chat. You can hear my voice. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए ताकि हम इसी वक्त इसको रिजॉल्व कर दें. ठीक है, अच्छा. After discussing the pathophysiology, now it comes to the types of meninges, type of meningitis. And what are the type of meningitis? One is the infectious meningitis and the second is the non-infectious meningitis.
Now, the most common ones which we are dealing with most of the time in the hospitals are the infectious ones, and the non-infectious ones are also there. So you should know that what are the reasons of non-infectious. Just आपको नाम याद करने हैं, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है? So the infectious etiology of meningitis is first and foremost is the bacterial, the second is the viral, the third is the fungal, and the fourth is the parasitic, ठीक है? The non-infectious are the cancers, the drugs like NSAIDs है, IVIG है, antibiotics है, antibiotics के अंदर metronidazole can cause meningitis, autoimmune conditions like SLE and sarcoidosis, epidermoid cyst. All these are the non-infectious causes of meningitis. So if you are going through an exam, if you are sitting in a paper or a viva, so you should all know the names, just names, not in the depth, but you should all know very well about the infectious causes of meningitis because they are very important, and most of the times, which at your level, you can have these type of questions in your exams. Now, this paper shows that what are the common pathogens of meningitis that can cause meningitis, but it is the pathogens that can cause bacterial meningitis. Okay, this is a table which shows, just 1 minute. So this is a list of the pathogens that can cause meningitis, in which it is being divided according to the month-wise and the age-wise. Now, if the patient is or if the baby is more than 1 month to less than 3 months, the most common causative agents, in according to the percentage, is the group B streptococcus, that is 39%, gram-negative bacilli, that is 32%, streptococcus pneumonia, that is 14%, and Neisseria meningitis, that is 12%. You know, you have to just learn these names by heart because these can come into in your exams, in your MCQs, everywhere. You have to learn. Okay? And now, if the baby is more than 3 months to less than 3 years, matlab the baby has crossed the infant age, and now it is less than 3 years. It is the baby is in the toddler age. So the most common causative agent is Streptococcus pneumonia, that is 45%. Neisseria meningitis, that is 34%. Group B streptococcus, that is 11%, and gram-negative bacilli, that is 10%. And if the individual is more than 3 years to less than 10 years, this is Streptococcus pneumonia, that is 47%, and Neisseria meningitis, 32%. And if the patient is less than 19 years, then the most common causative agent is Neisseria meningitis. Okay? You need to know the names of these organisms because we treat children and adults according to the ratio or according to the percentage of the organisms that can affect this age group. The common pathogens that can cause meningitis in the viral pathology, they are enteroviruses, group of enteroviruses, herpes simplex virus, that is herpes simplex virus type 1 and type 2, but the most common is type 1, varicella zoster virus that can cause shingles or chickenpox, mumps virus hota hai, HIV, and arboviruses that are acquired from the mosquito or other insects, and influenza viruses. ठीक है? Most common viral के अंदर, if I can tell you the names that you need to remember, is herpes simplex virus, varicella zoster virus, influenza virus, and enteroviruses. These 4 names should be on the fingertips, so that you can just tell them in the viva or in the paper. Now, if the patient is suffering from fungal meningitis, so the most common fungal meningitis is cryptococcal meningitis due to Cryptococcus neophis, Cucoides immitis, Histoplasma capsulatum, blastomycosis, dermatitis, and Candida species. The most common, as it is written in the slide, you need to remember is cryptococcal meningitis. Okay, and the second one is Candida species. Now, when you're talking about the parasitic infections that can cause meningitis, a parasite, you all know that amoeboid or amoeba, which is recently most common, is निग्लेरिया. सो अगर आजकल आपसे पूछा जाए तो आप पैरासाइट के नेम के अंदर निग्लेरिया को ले सकते हैं. अदर देन दैट, जिस्ट्रोसोमियासिस होता है,
और इसके अलावा पैरागोमियासिस हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर है पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। और इसके अंदर एक या टू, 1 to 2 नेम आर मोर देन इनफ इन ऑर्डर टू जस्ट टेल कि हमें आता है कि द पैरासिटिक कॉजेस, ठीक है। And now how can we know that there's a parasitic infection? So there is a predominance in the eosinophils in the CSF or the white blood cells in the CSF, and we see the CSF DR, ठीक है। Now, what are the symptoms of meningitis? How can we know that a patient landing in a ER is having meningitis? Any ideas, any thoughts? Chat में बता सकते हैं आप लोग. What do you think that if a patient is landing up in the ER along with a history of meningitis or symptoms of meningitis, so what are the main symptoms we need to know? Yes, high grade fever, very nice. Headaches, seizures, very nice. And headache, seizures हो गए, high grade fever हो गया, very nice. Good. So what are the symptoms? Altered consciousness, very nice. Good. Photophobia, ये सब इसी इसी से निकाल के तो नहीं बताया तुम लोग, ठीक है। अच्छा, वेरी नाइस। आई वांट यू गाइस टू बी इंटरेस्टेड विद मी अलोंग विद द लेक्चर आल्सो, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों को तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो, ठीक है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम? इज सेंट्रल के अंदर देखेंगे तो हेडेक एंड ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। एयर में पेशेंट बोलेगा कि मुझे आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई दे रही हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आईज में आपको फोटोफोबिया फील होता है, बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। नेक में देयर इज स्टिफनेस ऑफ द नेक। और वो क्यों होती है स्टिफनेस? बेसिकली द मेनिंजीज आर इन्फ्लेम्ड, ठीक है। मेनिंजीज गो फ्रॉम द brain parenchyma, from the brain parenchyma up to the spinal cord, so they are prolonged and they are there till the L1 L2 level of the spinal cord. So when there is an inflammation of the brain parenchyma, there is an inflammation of the meninges also. So this is why the meninges are also present in the neck. This is why the patient feels pain or feels stiffness of the neck while moving it, ठीक है। सिस्टमैटिक में अगर हम देखेंगे रिव्यू के अंदर, उसको हाई ग्रेड फीवर होता है, 100 से अबव जाता है, 103 102 का फीवर होगा। ट्रंकल और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अगर मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन है दैट इज वेरी लीथल, तो उसके अंदर आपको पेटिशिया नजर आ सकते हैं और रैश नजर आ सकते हैं, ओरल अल्सर्स नजर आ सकते हैं। सो ऑल दीज आर द alarming signs that we need to know if the patient is presenting in the ER with headache है और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फीवर हो रहा है, तो आपको फॉरन मेनिंजाइटिस की जो है वो हिस्ट्री को लेना है और उसके लिए फिर आपने वर्क कराना है, जो आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरी नाइस निहाल इमाम, इफ यू आर रीडिंग बुक से आपने पढ़ा है और आपने हम लोग को बताया है, दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली रिटन फॉर्म ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस, सो वी आर जस्ट गोइंग टू इट। हेडेक, फीवर, vomiting and rigidity of the neck are the most common symptoms that present with the onset of meningitis, ठीक है। So if the patient is coming in the ER with headache, fever, vomiting and rigidity of the neck, you should be alarmed and you should be right, you should be you can say कि आप एकदम रेडी हो जाओ in order to start the antibiotics and go for a lumbar puncture, ठीक है। Early symptoms including nausea, drowsiness and confusion, pain in the posterior thigh or the lumbar region may also be noted. एंड हमें पता है कि posterior thigh एरिया में क्यों पेन हो, क्योंकि वहां तक meninges इन्वॉल्व हो रही होती हैं। Later symptoms can include seizures, photophobia, rapid breathing rate. In addition to the rash in the skin, स्कैंटी पेटिशिया मिल सकते हैं, रेड और पर्पल, नॉट ब्लांचिंग मैक्यूल्स होते हैं स्मॉलर देन 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, और पर्प्यूरिक रैश हो सकता है जो कि ज्यादा होता है, मोर देन 2 मिलीमीटर, दैट अप्रोक्सीमेटली दैट अपीयर्स ऑन द अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ केसेस विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और वो होता है मेनिंजियोकोकल। तो जब भी आपको रैश हो ना, तो आप फौरन ग्लव्स पहन लेने, मास्क पहन लेने, और उससे जो है वो, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट वो जो है वो स्प्रेड आउट होता है, तो फौरन ही आपने आइसोलेट करना है पेशेंट को, एंड देन यू हैव टू सी द पेशेंट आफ्टर वेयरिंग ऑल द प्रोटेक्टिव dress, all of the protective dress that includes the face shield also, mask डबल करना होता है, पहनना होता है, एंड डबल ग्लविंग करनी होती है, ठीक है। Meningitis causing inflammation of the meningeal membranes. As a result, nerve roots may endure tension as well pass through these inflamed membranes. ठीक है, बस ये इससे ज्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए एट योर लेवल कि व्हाट आर द मेन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ पेशेंट कमिंग विद मेनिंजाइटिस इन ईआर। अच्छा,
there is a difference in the patients coming as adults or children, and if the patient is an infant, because infants have different signs and symptoms other than children and adults. So the infants may fever, possibly with cold hands and feet, can alarm you that the infant might be having meningitis. Refusing feeds or vomiting, high pitched moaning, crowd or whimpering, dislike of being handled or fretful, नेक रिट्रैक्शन विद आर्चिंग ऑफ द बैक, जिसको उपस्थित ओनस पोजीशन कहते हैं, वो बार बार होना शुरू हो जाती है. ब्लैंक स्टेनिंग एक्सप्रेशंस होते हैं. द चाइल्ड वुड नॉट स्माइल बैक एट यू. चाइल्ड इज डिफिकल्ट टू वेक, लेथार्जिक, पेल ब्लॉची कॉम्प्लेक्शन हो सकता है. फ्लॉपी और जर्किंग, फ्लॉपी और स्टिफ और जर्किंग मूवमेंट्स हो सकती है. सो इफ एनी ऑफ यू माइट सी एन इन्फेंट इन द ईयर सम टाइम इन योर लाइफ विद ऑल दीज complaints, you should get alarmed. आप अपने पेरेंट्स को बात करनी होगी, डॉक्टर्स को बताना होगा, एंड यू शुड स्टार्ट द एंटीबायोटिक फॉर एम्पेरिक एंटीबायोटिक फॉर मेनिंजाइटिस. ठीक है, बिकॉज इन्फेंट्स माइट नॉट स्पीक ना, वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो क्राई ज्यादा करेंगे, वो लेथार्जिक हो जाएंगे. सबसे पहले जो इन्वेंट करता है वो अपनी फीड को रिफ्यूज करना शुरू करता है और वॉमिट आउट करता है, और उसके बाद उसको फीवर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, और इन इन्फेंट रिस्क ऑफ सीजर इज वेरी मतलब very early seizures are seen in infants with who are suffering from meningitis. Now, what are the signs of meningitis? There are two particular signs that are done with patients with meningitis, and you should all see, and you should go to the YouTube, watch the YouTube for these Carney and Brzezinski sign. You can also see the pictures if you want, and YouTube can better elaborate it. So Carney sign is performed with the patient supine or in the chair. ठीक है, both ways you can do it. अगर बैठा हुआ patient OPD में है तो भी कर सकते हो, अगर लिटाया हुआ है तो भी कर सकते हो. And how it is done? The hip and knee are flexed to 90 degrees, and the attempt is made to extend the knee. फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने हिप जॉइंट को 90 डिग्रीज के ऊपर फ्लेक्स करना है, जैसे इस डायग्राम के अंदर फ्लेक्शन की हुई है, एंड देन आपने उसके नी को पूरा स्ट्रेट करना है. और दिस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द मैनुअल कॉजिंग पेन इन द नेक और द बैक. इफ द पेशेंट सेज कि मुझे हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन के पेन होता है नेक में या बैक में, सो दिस इज पॉजिटिव करेक्ट साइन. ठीक है, सेकेंड इज द ब्रोजोस्की टेस्ट. ब्रोजोस्की टेस्ट में क्या होता है कि आप पेशेंट को बोलते हैं कि आप बिल्कुल सीधा सुपाइन लेट जाएं, and then you have to flex the neck, which causes flexion of the hips and the knees. ठीक है, if the patient is having flexion of the hip and the knees after getting the neck flexed, that means the inflammation of the meninges is there and the test is positive. ठीक है, anything up till now that you need to discuss with me? कुछ पूछना है? Okay. Okay, sorry. Anything up till now that you need to discuss with me? Anything? कुछ पूछना है पूछो. Next और प्रोसेस के साइन के बारे में समझ आ गया? Any questions up till now? You guys are enjoying the lecture or you are getting bored? Okay. Miss, if normally we are doing this, it will be meningitis. Yes, yes. If the tests are positive, then this is the positive. If the test, both the signs are positive, like Kernick sign and the Brzezinski test is positive, then the patient is most likely having meningitis. And then after taking the proper history, after doing all these tests, we need to go for further testing in order to diagnose our like DDs बनते हैं ना, तो diagnose our case that is meningitis या ये फिर कुछ और है. ठीक है, तो diagnosis, what now coming to the diagnosis, तो हर चीज एक challenge होती है. Whenever we are going to the ER, when we are seeing the patient, the OPD, sometimes there are small challenges, sometimes they are very complicated. So होता क्या है, आप एक diagnostic challenge को किस तरह पास करते हैं? अपनी thorough knowledge के जरिए, अपनी investigations के जरिए, अपने clinical manuals के जरिए. ठीक है, the diagnostic challenges in patient with clinical findings of meningitis are as follows. That is the early identification and treatment of patient with acute bacterial meningitis, assessing whether a treatable CNS infection is present in those with suspected subacute or chronic meningitis, and identifying the causative organism. It is very, very, very important that you should all
keep your ears open and your eyes open if you are thinking about meningitis, because as soon as we start antibiotic, it is very very beneficial for the patient, because in sometimes in some or is it some bacterial pathogens or some type of viral pathogens, there are some complications that can be lethal to the patient. So as soon as we start the antibiotic, the more beneficial is for the patient. ठीक है? In order to benefit the patient and not to cause any harm and not to cause any complications furthermore. Now, when we are talking about the diagnosis, the first and foremost thing is the history taking. सबसे पहले अच्छी सी हिस्ट्री लो. अ, अगर आपके पास मेनिंजाइटिस का पेशेंट है तो मोस्ट लाइकली ही और शी वुड नॉट बी एबल टू आंसर यू, क्योंकि वो ऑल्टर्ड सेंसोरियम में होगा, उसको समझ नहीं आ रहा, ही और शी इज कंफ्यूज. और इन्फेंट है तो वो बात ही नहीं करेगा, बच्चा है तो वो बताएगा नहीं. तो हाउ we need to take the history from those family members who are living with the patient. Sometimes this relatives आ जाते हैं, मामू चचा खाला, ये नहीं. आपने उनसे पूछना है कि you guys are residing with the patient. अगर वो कहेंगे कि हाँ हम इनके साथ थे, हमने इनको देखा था, तो उनसे करेक्ट हिस्ट्री लेनी है. यही हिस्ट्री लेनी है कि कितने दिन पहले से आपको फीवर होना शुरू हुआ, कब से इनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई है, और लास्ट नॉर्मल कब, बिल्कुल ठीक कब थे. क्योंकि इससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि वेदर वी आर डीलिंग विद एन अक्यूट सिचुएशन और वेदर वी आर डीलिंग विद अ क्रॉनिक सिचुएशन. ठीक है. इसके बाद वी हैव टू गो फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन. एज वी ऑल नो द फिजिकल एग्जामिनेशन. अच्छा नेहल, आई विल रिप्लाई टू यू इन अ मिनट. ठीक है. तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने नेक रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस चेक करनी होती है वाइटल साइंस के बाद. फिर आपने इसके बाद पूरा टॉप टू बॉटम तो आपने वैसे थरली देखना है पेशेंट को. एनीमिया के लिए देखना है, जॉइंटिस के लिए देखना है फिजिकल एग्जामिनेशन में. लेकिन इसके साथ आपने जो स्पेसिफिक मैनवर्स कराने होते हैं मेनिंजाइटिस के, दैट इज नेक रिजिडिटी. सेकेंड आपने देखना होता है कर्निक साइन, और इसके बाद आपने ब्रुसेल्स की साइन करनी होती है. ऑल दी साइंस आर अ पार्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन व्हेन वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स विद meningitis. After taking a proper history and doing a proper physical examination, if your guess is going towards meningitis, then we have to order a set of laboratory investigations. Now what can be done in laboratory? ठीक है. तो इसमें सबसे पहले first more thing, जो simple things first. Okay. First of all, we have to know a complete blood count. ठीक है. Complete blood count में what are the things that we will be looking towards is the WBC, that is the white blood cell count. एंड सेकेंड आपने क्या देखना होता है? इनका प्लेटलेट काउंट. ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस कैन कॉज अ राइज इन द WBC एंड अ डिक्लाइन इन द प्लेटलेट्स. PTINR क्यों कराएंगे? PTINR इसलिए कराएंगे कि व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्लड वो CSF एग्जामिनेशन के लिए जब आप लंबर पंचर करोगे ना, तो वी नीड टू इंसर्ट अ नीडल इनसाइड द लंबर स्पेस. सो वी नीड टू नो दैट कोगुलेशन प्रोफाइल इज ओके. अगर INR इज मोर देन 1.7, 1.8, 2, तो आप बिल्कुल भी उसके अंदर नीडल नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे हीमोटोमा डेवलप हो सकता है. ठीक है. थर्ड में आपने सीरम क्रेटिनिन लेवल्स कराने होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. नाउ व्हाई सीरम क्रेटिनिन लेवल्स? कोई आपसे पूछ सकता है या आपके दिमाग में भी ये बात आ सकती है कि इट इज रिलेटेड टू meningitis. So why we have to go for serum creatinine levels? Because what happens is that whatever antibiotics are we giving that are excreted by the kidneys. Now if patient is suffering from acute kidney injury along with meningitis, like 3 का creatinine है, 5 का creatinine है, और आप उनको देते रहेंगे के antibiotics without knowing the creatinine levels, what we are going to do, we are going to induce more acute kidney injury. ठीक है. तो आपने उसको prevent करना होगा. साथ में आपने सोडियम एंड पोटेशियम करना होता है. सोडियम और पोटेशियम क्यों करते हैं? ताकि आपको पता चले कि कोई इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस ऐसा नहीं है जो कि इनके ऑल्टर्ड सेंसोरियम में आ रहा है. इसके बाद आपने सीरम ग्लूकोज लेवल्स कराने होते हैं, बिकॉज सम इट हैपेंस इन सम काइंड ऑफ लीथल पैथोजेंस कॉजिंग मेनिंजाइटिस, कि उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, दैट कैन कॉज सीजर एंड मोर altered sensorium. Now very important is the CSF examination, which is known as the CSF DR. ठीक है. CSF examination we will let you know कि मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी आगे कि how we do and what is the importance of the CSF examination. and फिर में आपने ब्लड कल्चर करना होता है in order to know that ऐसा तो कोई इन्फेक्शन नहीं था जो ब्लड में था और वो सीट कर गया है ब्रेन के अंदर. इसके बाद आप फंडोस्कोपी करनी होती है. नाउ व्हाई वी हैव टू डू अ फंडोस्कोपी? ठीक है. फंडोस्कोपी इज बीइंग डन in order to know that आपका इंट्रा
इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो रेज नहीं है, because if the intracranial pressure is raised, I cannot do the CSF examination because it can cause the herniation of the cerebellar tonsils. So we need to be very careful before inserting the needle into the lumbar space. इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने करना होता है सीटी स्कैन ब्रेन प्लेन, दैट इज डन विद इन 5 मिनट्स। अगर आपके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है कि आपके पास एमआरआई की फैसिलिटी है, तो एमआरआई ब्रेन कॉन्ट्रास्ट कराते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू नो द इन ऑर्डर टू नो कि ब्रेन के ऊपर कहीं पे मेनिंजाइटिस की वजह से कोई इस्केमिक इंफार्क्शन तो नहीं हो गया, या इतना डिफ्यूज सेरेब्रल एडिमा तो नहीं है कि मैं पंचर नहीं कर सकती, या हर्पीस के अंदर जो है टेम्पोरल लोब्स के अंदर डेंसिटी स्टैब्लिश्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा नेहल, यू आस्क मी कि आपने आई मीन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अच्छा अगर किसी को ड्यूरिंग एक्सरसाइज इस तरह का पेन हो रहा है तो इट्स नॉट मेनिंजाइटिस, इट्स बेसिकली स्ट्रेचिंग ऑफ योर मसल्स, और वो होता है इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हुई भी होती है, एक्सरसाइज आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, ठीक है, और उससे पहले आपने वार्मिंग अप करनी होती है। तो अगर आप एकदम से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देंगे या एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके नेक में भी पेन होगा, नेक फ्लेक्स करेंगे तो आपके लेग्स में भी पेन होगा, तो दैट डजंट मीन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस, दैट मीन्स यू नीड टू लिटिल बिट वार्म अप बिफोर द एक्सरसाइज। और मेनिंजाइटिस में सिर्फ और सिर्फ नेक स्टिफनेस या कर्निंग्स ऑफ स्किन में पॉजिटिव नहीं होगी ना, फीवर भी होगा, पेशेंट ऑल्टर सेंसोरियम में भी होगा, हेडेक भी हो रहा होगा, तो बाकी साइंस और सिम्टम्स भी होंगे, ठीक है। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू से कि इनको जो है वो सीएसए इनका जो है, सॉरी सीएसएफ के बारे में बता देती हूँ, फिर सीएसएफ को डिस्कस भी करेंगे। नाउ वी कैन सी पेशेंट दैट इज लाइंग डाउन, ठीक है, लाइंग डाउन इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन, और एक सी शेप पोजीशन बनाई हुई है जिसके अंदर आपने बताना ये होता है, उर्दू में भी बता देती हूँ, इंग्लिश में बता देती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पेशेंट्स वी आर डीलिंग विद अंडरस्टैंड उर्दू, और उर्दू में बात करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज टेल द पेशेंट कि आपने अपने पैरों को अपने पेट से चिपकाना है, मतलब और सर को नीचे करना है, एंड मेक अ सी विद योर बॉडी, मतलब एक सी शेप सिंबल बनाना है विद योर बॉडी, जिसमें आपकी थाइज जो हैं वो बिल्कुल आपके स्टमक के साथ होंगी, और आपके नेक को फिक्स करना है। और अगर आपने इंग्लिश में बताना है तो यू नीड टू टेल द पेशेंट that I am going to drain your CSF, that is being drained between the two lumbar vertebrae that are most likely L3 and L4, or L4 and L5. It won't be a more it won't be very painful, but it will hurt a bit, so you need to relax down the body. सबसे पहले पेशेंट का कॉन्फिडेंस लो अपने साथ कि वो आपके साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया है, कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। देन यू नीड टू टेक ऑल द प्रोटेक्शंस, आपने लैटेक्स के ग्लव्स पहने हैं, सर्जिकल ग्लव्स पहने हैं, बायोटीन से एरिया को क्लीन करना है, यू नीड टू टेक केयर अबाउट द पेशेंट्स प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन, और प्राइवेसी शुड बी मेंटेन। ऐसा नहीं कि सबके सामने लम्बा पंचर कर दिया, अलग से एक रूम में ले जाके या कर्टन करके उसको बिल्कुल सेपरेट करना होता है। अटेंडेंस शुड नॉट बी प्रेजेंट, written and informed consent should be taken before the lumbar puncture कि भाई ये lumbar puncture करूंगा। The patient is not that much confident or that much conscious, तो आपने उसके वालों से लेना होता है, ठीक है। Then we after telling him, after comforting him, you need to tell कि you need to flex your legs and be sure that your thighs reach the stomach and your neck should be fixed and make a C with your body, ठीक है। And as soon as you release your body tone, you relax your body, I will insert the needle inside and inshallah we will be done with the CSF. अगर आप ये बोल दोगे ना तो 90% of fear of the patient goes away, और इस तरह हम आराम से CSF कर सकते हैं। वन और दफा ऐसा होता है कि पेशेंट इतना रिजिड कर लेता है अपने आप को कि आपकी नीडल स्पेस के अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। सेकेंडली हम एक ये सीटी स्कैन देख रहे हैं, ठीक है। इस सीटी स्कैन में दिस इज अ सीटी स्कैन ब्रेन प्लेन एंड दिस इज अ सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट। If you can all see the white lines going inside the brain, right? All these white lines are the blood vessels, and this is a contrast uptake that is increased due to the infection. जब भी कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो कॉन्ट्रास्ट वहां पे अपटेक ज्यादा ले लेता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब चमकता हुआ आपको नजर आता है। तो वी कैन ऑल सी द ब्राइटिंग white lines in the brain parenchyma. This is because of the fact that the patient is suffering from meningitis, ठीक है। Now, how we can see that the CSF
what CSF reveals and how we can see that what kind of meningitis is patient going through ना, bacterial है, viral है, fungal है, tubercular है, अलग अलग types है, लेकिन हम उसको differentiate कैसे करेंगे? तो CSF-DR is basically a very good method in order to differentiate between the bacterial, viral, fungal और tuberculous meningitis. ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस टेबल में देखें, इस टेबल को पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मल का टेबल है. ठीक है, नॉर्मल में आपके पास ओपनिंग प्रेशर है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट है, डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशियल्स हैं कि कौन सा डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, प्रोटीन का कंटेंट है, ग्लूकोज है और ग्रास्टेन है. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है. अब नॉर्मल पहले पढ़ेंगे तभी हमें एबनॉर्मल समझ आएगा, अगर हम नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हमें एबनॉर्मल नहीं समझ आ सकता. ठीक है, so first of all if you can see the normal opening pressure is less than 180 millimeter of water. ठीक है, the WBC count in normal individuals like me or you who are talking, who are walking is 0 to 5. ठीक है, if it exceeds beyond 5 then we should be alarmed. ठीक है, WBC differential there is no predominance of neutrophils or lymphocytes. This is normal. 0 to 5 में आपके differentials आते ही नहीं. प्रोटीन कैन बी बिटवीन 15 टू 50. ठीक है, 50 से अबव जाएगा तो हम घबराएंगे, हम देखेंगे कि भाई पेशेंट को मेनिंजाइटिस है. ग्लूकोज इज 45 टू 100, दैट इज 2/3 ऑफ द सीरम. ठीक है, एंड ग्राम स्टेन, कोई ग्राम स्टेन होगा ही नहीं क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही नहीं है. अब यहाँ पर आएगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर सबसे ज्यादा टर्बिड अपीयरेंस होती है, मतलब जो आपको सीएसएफ होता है ना, वो बेसिकली क्लियर बिल्कुल पानी जैसा होता है, लेकिन जब इसके अंदर इन्फेक्शन आ जाए तो फिर वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि आपके हल्का सा 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क अगर आपने पानी में मिलाया तो कलर कैसा हो जाता है, वैसा कलर हो जाता है जब ज्यादा इन्फेक्शियस सीएसएफ होता है. तो द ओपनिंग प्रेशर इन द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज वेरी हाई, इन 200 to 500 का होता है. नाउ ऑल ऑफ यू माइट नो कि ओपनिंग प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है. ओपनिंग प्रेशर के लिए एक डिवाइस होता है जिसको मैनोमीटर कहा जाता है, उससे ओपनिंग प्रेशर को मेजर करते हैं. ठीक है, इसके बाद WBC काउंट होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बहुत हाई. ठीक है, इट इज बिटवीन 100 to 20,000, बहुत ज्यादा हाई है. अगर 800, 1000, 10,000 से ज्यादा बढ़ गया तो फिर आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरियल पिक्चर है. WBC डिफरेंशियल क्या होता है? मोस्ट लाइकली 80% जो है वो पॉलीमॉर्फिल्स होते हैं, मतलब लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेट नहीं करता, न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट करते हैं. तो आपको पता चल जाएगा, एक और क्लू मिल गई कि हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पे जा रहे हैं. अब प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा हो जाता है, 100 to 500 का होता है. ग्लूकोज जो होता है वो लेस देन 40% ऑफ द सीरम हो जाता है. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया जब इतनी जल्दी रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, जब इतने इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, इतना ज्यादा वो काम कर रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर से वो ग्लूकोज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्टिविटी. अगर वो कंज्यूम नहीं करेंगे ना ग्लूकोज तो वो इतना एक्टिवली काम नहीं कर सकेंगे बैक्टीरिया. ठीक है, और स्टेन क्या होता है, 60 to 90% पॉजिटिव आता है इसके अंदर. गोइंग टूवर्ड्स वायरल मेनिंजाइटिस. अच्छा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में मुझसे कुछ पूछना है सीएसएफ के बारे में, कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो ताकि अभी मैं एड्रेस कर लें. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वायरल मेनिंजाइटिस. वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ओपनिंग प्रेशर नॉर्मल होता है. बीसी काउंट होता है वो 5 to 500 होता है, मतलब बहुत ज्यादा रेज नहीं होगा. ठीक है, अच्छा, लेकिन डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशियल्स के अंदर क्या है, मोर देन 50% लिम्फोसाइट्स होते हैं. जब आप लिम्फोसाइट्स के ज्यादातर डील कर रहे हो तो आपके पास दो डिफरेंशियल्स होते हैं, ज्यादातर जो दिमाग में आते हैं वो वायरल है या फिर ट्यूबरकुलस है, लेकिन ट्यूबरकुलस का जो सेल काउंट होता है वो चेंज होता है, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे. ठीक है, प्रोटीन इसमें 30 to 150 के दरमियान का रहता है. ग्लूकोज इसके अंदर तकरीबन नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है. ठीक है, फिर आता है फंगल मेनिंजाइटिस के ऊपर. फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर अगर पेशेंट क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के साथ डील कर रहा है ना, तो मोर देन 250 का ओपनिंग प्रेशर होगा. WBC काउंट एज वी कैन ऑल सी 20 to 2000 है, इतने ज्यादा बड़े हुए नहीं है. इसका भी WBC डिफरेंशियल जो है मोर देन 50% लिम्फोसाइट है. प्रोटीन 40 to 150 और ग्लूकोज 30 to 70 है. अच्छा, इतने बड़े टेबल को देख के घबराने की जरूरत नहीं है. जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना वो आपको पता क्या होनी चाहिए, वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ओपनिंग प्रेशर, उनका WBC काउंट, WBC डिफरेंशियल, प्रोटीन्स और ग्लूकोज और वायरल का, और उनके अंदर से मेजर डिफरेंसेस को याद रखो. मेजर डिफरेंस सेल काउंट का है, WBC डिफरेंशियल और प्रोटीन्स का है. ठीक है, और ये बात याद रखना कि बैक्टीरियल के अंदर ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा होता है तो लेस देन 40% ऑफ द सीरम हो जाएगा. ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, जिसमें ओपनिंग प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट 5 to 2000 के दरमियान हो सकते हैं, डिफरेंशियल 80% लिम्फोसाइट होता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस जिसको भी मेनिंजाइटिस होगा ना, वो लॉन्ग हिस्ट्री के साथ आएगा, 3 months 4 months का फीवर चल रहा है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम चल रही है, पेशेंट को हो सकता है पहले कभी टीबी पहले हुई भी हो, या घर में किसी को टीबी हो सकती है, वो क्राउडेड प्लेसेस में रहेगा, तो ये अक्यूट मेनिंजाइटिस में नहीं आता, तो इसलिए इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोटीन काउंट इसमें मोर देन 50 होता है, ग्लूकोज लेस देन 40 होता है, और इसके अंदर एएफपी स्मेयर पॉजिटिव होता है, जो कि आप टीबी के लिए से भिजवाते हो। ठीक है, सही है। अच्छा मैम, व्हाट्स द ओपनिंग प्रेशर? ओपनिंग प्रेशर बेसिकली ये होता है कि वेन एवर वी इंसर्ट अ नीडल इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड ना, तो आपका फ्लूइड निकलना शुरू होता है, सीएसएफ। नाउ at that time whenever there is a first drop of blood coming out from the needle ना, we need to take the pressure कि कितने प्रेशर से आउट आ रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आउट आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कोई बैक्टीरियल या ऐसे मेनिंजाइटिस के साथ सफर कर रहा है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन और ब्रेन के अंदर एडिमा बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज ओपनिंग प्रेशर। ओपनिंग मतलब उसी वक्त चेक करते हैं जब आपने फर्स्ट सीएसएफ आना शुरू, प्रेशर वही मैनोमीटर के अंदर जैसे गेज होता है ना, कोई भी स्केल होता है, उसी तरह उसको जो है ना मेजर किया जाता है। ठीक है, सही समझ गए? इसीलिए इसको ओपनिंग प्रेशर कहा जाता है, और ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि पेशेंट जो है वो कौन से मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं, अब हमने डायग्नोसिस कर लिया, अब हमने सीएसएफ की फाइंडिंग्स कर ली, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पेशेंट को क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। अब नाउ वी नीड टू नो द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, क्योंकि कोई भी चीज की डिजीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसकी बात है हमें उसकी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने असेसमेंट करनी है पेशेंट की इमरजेंसी में या ओपीडी में, उसको फिर एडमिट करेंगे रिकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, उसको वार्ड की नीड है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट की नीड है। फिर आपने इसको पास करना है आईवी कैनुला में, स्टार्ट कर देनी है उसकी हाइड्रेशन। पेशेंट इमरजेंसी में आया, आपको लगता है एडमिशन का है, एडमिट करने के लिए फौरन बना दो पेपर, और साथ साथ उसको आईवी कैनुला का, नर्स को बोलो कि आईवी कैनुला करें और हाइड्रेशन स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ फीवर और एनसेट्स फॉर हेडेक देंगे, और फीवर के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे और एनसेट फॉर हेडेक। पेशेंट को हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन में रखो। स्टार्ट एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन, अब पेशेंट सीजर करता है तो फॉरन एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन एपिबॉल या लिरेस वगैरह देनी होगी। एम्पेरिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी होगी। सीटी स्कैन की तरफ रश करना है, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीज कर रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो रही है, फॉरन सीटी स्कैन की तरफ रश करें। और इसके बाद आपने सारे लैब्स निकालने, जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे ना, सीबीसी, क्रेटिनिन, ये सब चीजों के लैब्स निकाल के, अगर उसी वक्त अगर आपको ईयर में कोई इन्फेक्शन लग रहा है या आपको नेजल कोई थ्रोट इन्फेक्शन लग रहा है तो पस स्वैब ले लो। और आजकल के दिनों में कोविड पीसीआर भी जरूर कराओ, क्योंकि कोविड के अंदर भी मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस आया है। ठीक है, आजकल के लिए मैंने कोविड भी डाला था इसके अंदर, वैसे आपको कोविड कराने की जरूरत नहीं है। तो मोरलेस जैसे एक नॉर्मल पेशेंट आता है और आप उसको डील करते हो ना, इसी तरह डील करना है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है और एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स को फौरन स्टार्ट कर देना होता है, इतना टाइम नहीं लगाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाते हैं। अच्छा, किसी को अगर एयर इन्फेक्शन, लाइक मिडल एयर इन्फेक्शन के अंदर पस वगैरह आ रहा है तो ईएनटी रिव्यू जरूर कर लो, क्योंकि मोस्ट लाइकली क्या होता है कि ये जो पस का इन्फेक्शन होता है ना, जो एयर में वो ट्रैवल करता है, वो ब्रेन में चला जाता है और वो बोन को भी इन्वेट कर लेता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें गम का इन्फेक्शन है, मतलब आपके दांत में टीथ इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से भी उस वहां से भी आपको इन्फेक्शन ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छा नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की आपको बेटा याद करनी होगी सबको, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो। ठीक है, बाकी वायरल वगैरह के लिए सिर्फ नामों का याद कर लेना जरूरी है। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर डीलिंग विद एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर हमारे पास न्यूनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, एटियोलॉजी के अंदर हमने पहले ही पढ़ लिया था, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हो सकते हैं, लिस्टिया मोनोसाइटोजीन्स हो। एंटीबायोटिक कवरेज क्या दोगे? एम्पिसिलिन दोगे या फिर सेफोटेक्सिन दोगे। ठीक है, एम्पिसिलिन दोगे या फिर सेफोटेक्सिन दोगे, और क्योंकि ये न्यूनेट्स है तो आपको बच्चों के वेट के हिसाब से देना होगा। ठीक है, इफ यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन लाइक 3 मंथ से लेकर 7 इयर्स तक, तो इसमें कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया या नेरिया मेनिंजाइटिस है, तो इसमें सेफ्ट्रैक्सोन देनी होती है 50 mg/kg IVQ12 वाली। ठीक है, यंग अडल्ट है मतलब 7 to 50 इयर्स है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया एंड नेरिया मेनिंजाइटिस है, तो पॉजिटिव
तो हम वैनकोमाइसिन और सेफ्ट्रेक्सोन देते हैं, ठीक है। वैनकोमाइसिन 1 ग्राम IVQ 12 आवर लिया, सेफ्ट्रेक्सोन 2 ग्राम्स IVQ 12 आवर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर ये अडल्ट हैं, अल्कोहलिक्स हैं और उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो क्रॉनिसिटी से चल रही है, तो उसके अंदर ग्राम नेगेटिव रॉड्स, नेस्लिया मेनिंजाइटिस या फिर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स या फिर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का डर ज्यादा रहता है, तो इसमें आपने एम्पिसिलिन और सेफ्ट्रेक्सोन देना है। और ये भी वेट के हिसाब से देना है, या इसमें ये जो लिखा हुआ है वो याद कर लोगे तो दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। आगे फिर पेशेंट विद पोस्ट न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा, या जिनको हेड ट्रॉमा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या जिनको कोई VP शंट या कोई न्यूरोसर्जिकल हुआ हुआ प्रोसीजर, तो उनके लिए वैनकोमाइसिन के साथ सेफ्ट्रेजिडीन दिया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? कोई चीज इसमें पूछनी है? ये बाय हार्ट रट्टा लगाने वाली चीजें होती हैं, तो इसके लिए बस एक दफा याद करना शुरू कर दो कि बार बार वॉलेटाइल होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हम जो है ना, जब ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को डील करते हैं तो हम उसके साथ स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। स्टेरॉइड्स हम पहले 3 से 4 दिन के लिए देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। और डेक्सा देते हैं हम, बेसिकली उसकी डोज से याद कर लो, 0.15 mg/kg के हिसाब से दिया जाता है, 6 आवर्स फॉर 2 to 4 days। और ये क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि ये जो है वहाँ जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ना, उसको थोड़ा कूल डाउन करता है, क्योंकि ब्रेन मेनिंजेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड होती है, वहाँ पे रेडनेस हो रही होती है, टेंडरनेस भी हो रही होती है, तो फाइटिंग हो रही होती है आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम और पैथोजेंस के खिलाफ। तो हो क्या रहा होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा जो केओस मचा हुआ होता है, उस केओस को थोड़ी देर कूल डाउन करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, ताकि आराम थोड़ा सा ब्रेन कूल डाउन हो। फिर इसके बाद एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ये हमेशा एंटीबायोटिक्स से पहले दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बाद में नहीं दिया जाता। अच्छा, व्हेन वी आर डीलिंग वायरल मेनिंजाइटिस, तो सिर्फ एक नाम को याद रख लो, एसाइक्लोविर। जो मैंने रेड किया हुआ है दैट इज द वन नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एसाइक्लोविर 10 mg/kg after every 8 hours for HSV1 and HSV2, that is herpes simplex virus meningitis। और अगर बहुत ज्यादा कुछ याद करना हो तो गैनसाइक्लोविर एंड फॉस्कार्नेट का नाम याद रखो। डोजेज एज सच आपसे इसकी नहीं पूछी जाएंगी, और आपसे ये भी नहीं कोई पूछता कि आप कितना जो है ना कितने mg से देना है, और सिर्फ आपको नाम याद रखना होता है। अच्छा, जब आप वायरल मेनिंजाइटिस के साथ डील करते हैं ना, तो आपको एसाइक्लोविर 21 डेज के लिए दी जाती है। तो ये याद रख लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितने दिन के लिए दी जाती है, तो 21 डेज। स्टेरॉइड्स 2 to 4 days के लिए दिए जाते हैं। और एम्पेरिक एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज गिवन फॉर 14 डेज, ठीक है। बैक्टीरियल 14 days along with steroid for 2 to 4 days। viral is given for 21 days if there is herpes simplex virus meningitis, ठीक है। चलो, अब आएगा हमारे पास फंगल एंजाइटिस, आई थिंक सो द लास्ट स्लाइड। अच्छा, फंगल मेनिंजाइटिस बहुत ज्यादा डील करना पड़ता, आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इनिशियल थेरेपी के लिए जो हम सिर्फ रेड में नाम है ना वो याद रखना, एम्फोटेरिसिन दिया जाता है एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स विद और विदाउट फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। और फ्लूकोनाजोल किसके लिए दिया जाता है? फ्लूकोनाजोल कैंडिडियासिस के लिए दिया जाता है, या इट्राकोनाजोल दिया जाता है। ये 3 नाम याद रखो। इफ someone asks you that how to treat fungal meningitis, you guys should know that we can give amphotericin B, fluconazole और itraconazole, ठीक है। अगर हम पैरासिटिक के अंदर डील करें तो भी हमें इंट्राथीकल एम्फोटेरिसिन बी दिया जाता है, मेकनाजोल और रिफेम्पिसिन दिया जाता है। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये बेसिकली निग्लेरिया की ट्रीटमेंट है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो इसकी वजह से। अच्छा, नेहल यू आर राइट, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की डोजेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूनेट्स के अंदर ना केजी के हिसाब से दिया जाता है, वेट के हिसाब से दिया जाता है, तो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। अगर आपको कुछ भी याद आ रहा हो ना, तो आप ये कह सकते हैं अडल्ट में जैसे हम डील करते हैं मेनिंजाइटिस में, कि आप वैनकोमाइसिन स्टार्ट करते हैं और सेफ्ट्रेक्सोन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेफ्ट्रेक्सोन हम स्टार्ट करते हैं 2 ग्राम IV 12 बारली, मतलब BID डोज हो गई। और जो वैनकोमाइसिन देते हैं वो 750 mg दिया जाता है, जो हम देते हैं नॉर्मली 750 mg IVQ 6 आरली, या टोटल आप देते हैं 3 ग्राम्स पर डे का, ठीक है। तो बस ये 2 नाम याद रख लेना, वैनकोमाइसिन और सेफ्ट्रेक्सोन। ज्यादातर यही दिया जाता है 14 डेज ट्रीटमेंट में, और ये क्रेटिन एंड एडजस्टेड डोजेस में दिया जाता है वैनकोमाइसिन, ये याद रखना अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है। अगर ये नहीं भी आ रहा तो ये 2 नाम ये जरूर याद रखना, ठीक है। सही है। अच्छा, बैक्टीरिया अगर हम ट्यूबरकुलस कहते हैं, तो ट्यूबरकुलस के अंदर तो हमें पता है कि हमारे पास मायरिन P4 आती है, या एक पूरा कॉम्बिनेशन होती है आइसोनाइजेट रिफेम्पिसिन
पायराजिनामेड, इथैम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी आप एक पिक्चर ले सकते हो। ये क्रोनिक मेनिंजाइटिस के अंदर आता है, ये अक्यूट मेनिंजाइटिस में नहीं आता, और ये पर डे के हिसाब से दिया जाता है। सम ऑफ द मेडिकेशंस आर गिवन बॉडी वेट वाइज एंड सम ऑफ द मेडिकेशंस आर लाइक आइसोनाइसिन 300 mg पर डे के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। 70 kg अडल्ट जो मैन होगा ना, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, उसके अंदर ये डोज से दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब आप ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को डील करते हैं तो हमें इसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ज्यादा टाइम के लिए देनी पड़ती है, 2 मंथ्स के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हमें ट्यूबरकुलस के साथ चलेगी, इसके बगैर हम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। चलो अब कॉम्प्लिकेशंस, लास्ट स्लाइड। ये सेकंड लास्ट है, हाँ सेकंड लास्ट। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है ये याद रख लो। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की अर्ली और लेट कॉम्प्लिकेशंस आप सबको पता होनी चाहिए बिकॉज इट इज अ वेरी लीथल मेनिंजाइटिस। इसके अंदर रैश होता है, पेशेंट ऑल्टर सेंसोरी में बहुत जल्दी जाता है, और अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में इसमें फिट्स या सीजर्स हो सकते हैं, रेज आईसीपी या इंट्राक्रेनल प्रेशर कह लो उसको, हाइड्रोसेफेलस बन सकता है, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एडिमा मतलब कि स्वेलिंग ब्रेन के ऊपर, हेमीपेरेसिस क्यों होगा क्योंकि पेशेंट स्ट्रोक कर जाता है, ठीक है। तो पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा तो वन साइड ऑफ द बॉडी कैन गेट वीक, ठीक है। तो हेमीपेरेसिस इसलिए होगा, सेरेब्रल एडिमा क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग बढ़ गई है, हाइड्रोसेफेलस क्योंकि बॉडी का जो ब्रेन का इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं उसके साइज भी बढ़ जाते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या हो सकता है, डेफनेस हो सकती है, चिल्ड्रन के अंदर डेफनेस बहुत ज्यादा देखी गई है, क्रेनियल नर्व की पैल्सीज हो सकती हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर फल्मिनेंट मेनिंजोकोकमीनिया है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो लॉस ऑफ स्किन हो सकती है, डिजिट्स टू इस्कीमिक नेक्रोसिस एंड इन्फेक्शियस, और शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकते हैं। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, एक गोनोकोकल होता है और एक मेनिंजोकोकल होता है ना। तो मेनिंजोकोकल नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, और गोनोकोकल उसकी वजह से होता है, नेजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है, ठीक है। चलो, कॉम्प्लिकेशंस के बाद हाउ वी कैन प्रिवेंट, एक तो बिहेवियर अपना सही करना चाहिए, मतलब कि आपको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। बैक्टीरिया एंड वायरल मेनिंजाइटिस आर कॉन्टेजियस, नाइदर इज एज कॉन्टेजियस एज अ कॉमन फ्लू और कोल्ड, बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सिक्रीशन, but bacterial meningitis cannot be spread by only breathing the air where a person with meningitis has been। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक पेशेंट मेनिंजाइटिस का लेटा हुआ है उस रूम में, तो अगर आप भी इस रूम में थोड़ी देर के लिए चले गए तो आपको मेनिंजाइटिस हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में आए हो, उसने कफ आउट किया है आपके फेस पे या आपके एक्सट्रीमिटी पे, हाथ वगैरह पे आपके उसके ड्रॉपलेट्स आ गए, तो आप उसे कैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको करना क्या होता है, इसको आपको हाइजीन मेंटेन करनी होती है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना पड़ता है बहुत ज्यादा, और साथ में अगर आप मेनिंजाइटिस के पेशेंट को देखने जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मास्क पहने, फेस शील्ड पहने, गाउन पहन लें। और अगर कोई पेशेंट है जिसको घर में मेनिंजाइटिस हो गया ऐसा जो कि कंटेजियस है, तो उसको आइसोलेशन में करना पड़ता है, उसके बिल्कुल आपके जो सारे यूटेंसिल्स होते हैं वो उसको चेंज करना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है, उसकी जो टॉवल वगैरह है उसको भी आप अलग कर लें, ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन किस किस के अगेंस्ट हो सकती है, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट हो सकती है, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट हो सकती है, और निमोकोकल। तो इफ यू कैन ऑल सी, जब हम हज या उम्रे पे जाते हैं तो हमें लगता है ना मेनिंजाइटिस का जो वैक्सीनेशन होती है वो प्रिवेंटिव मेजर्स में होती है, तो इट्स बेटर टू गेट वैक्सीनेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कुछ पूछना है, किसी को भी पूछना है तो आई विल बी साइनिंग आउट। समझ आया सबको? आज बोर तो नहीं हुआ, कोई बोर तो नहीं हुआ आज, ठीक है। आज नींद तो नहीं आई किसी को, समझ आ गई है। अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो यू गाइज वेन एवर कम टू कॉलेज, कम टू मी, आस्क योर क्वेरी सो दैट इट कैन बी एड्रेस्ड, और आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, ठीक है। इफ यू गो एंड रीड समथिंग एल्स फ्रॉम योर बुक्स, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी एंड आस्क मैडम हमने ये पढ़ा था, आपने ये पढ़ाया था, ठीक है, ताकि हर चीज क्लियर आउट हो जाए। जज़ाकल्लाह ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।